कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everybody chant. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Jai Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Jai Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jai Radha Vrindavan Chandra, Radha Vrindavan Chandra Radhe. Jai Radha Kunja Vihari, Radha Kunja Vihari Radhe. Jai Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Radha Sham Sundar, Radha Sham Sundar Radhe. Jai Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Jai Jamuna Mai, Jaya Jamuna Mai, Yamuna Mai, Jaya Yamuna Mai. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, Jai Giri Govardhan. Thai Gaur Premanande. Huh? Yes. Hare Krishna devotees, today we have class by His Grace Vishwarup Prabhu. So, a quick introduction about His Grace Vishwarup Prabhu. Prabhuji is an initiated disciple of His Holiness Radhanas from Maharaj, and Prabhuji has completed his MBBS from Mumbai University in 1985 and from JJ Hospital, Mumbai. Prabhuji has fellowship in palliative care and hospice administration from San Diego Hospice, California in 2007. Prabhuji has done his post-graduation in diploma in psychological counseling in 2009. And Prabhuji has held many positions. Some of them are trustee of Sri Chaitanya Seva Trust, which runs 12 hospitals. Currently serving as Deputy Director of Bhaktivedanta Group of Hospitals and Research Institute. And there are some philanthropic activities of Prabhuji. Some of them are pioneer of Bhaktivedanta Hospitals Eye Service in Barsana, Mathura, UP State, and the Barsana Eye and Dental Camp from last 30 years. They do 3,000 free eye surgeries per year in Barsana, where we are going tomorrow. Now constructing Bhaktivedanta Eye Hospital at Chiksoli, Barsana, Mathura district in UP. And some of the academic details for Prabhuji are briefly, he is a teacher of palliative care, end-of-life care, and spiritual care in nursing. Senior spiritual counselor of Sri Radha Gopinath Bhakti Samaj from 1989, and for consultant doctors and senior nurses of Bhaktivedanta Hospital. Regular speaker of Bhagavad Gita on Atma serial broadcast on Star Plus, Colors, ETC, Astha TV channels in the past. Now regularly featuring on Hare Krishna TV. And Prabhuji is conducting many yatras like this to all the dhams on Zoom. He has his own YouTube channel broadcasting his lectures and travel experiences.
Hare Krishna, Hare Krishna. So His Grace Vishwarup Prabhu is one of the very early day devotees who met His Holiness Radhanath Maharaj way back in 1986. Like you all have probably met His Grace Dwarkadish Prabhu and Vishakapriya Mataji. Similar to that. Very, very early day devotees when there were only 20-25 devotees in Shobari temple in those days. So he's very enriched with Maharaja's personal association. And also, Prabhu, how many years you lived in Vrindavan here? When the 1 year. 1 year, yeah. 1 year. 92. 1992, yeah. At that time, he made close friendships with many Barsana Vasis and many great souls here. So he knows a lot of places in very great detail. Like we say, Dham Darshak, taking you to a particular spot and explaining what happened in those places. Leela Stalis. He's very, very expert in that. During the pandemic time also, in the Govardhan Eco Village, we already have a small Vrindavan model there. So he arranged for Yatra within that place. People came, he would take them to one spot and explain all the places, and it was video recorded, and thousands of people watched worldwide. So Prabhu is very famous for that. When I was studying in IIT Bombay, Devamrit Prabhu in those days would take us to the, what is that college? Sassoon Medical College in Bombay. No, it's Grand Medical College. Yeah, Grand Medical College. So And Sion Medical. Science Medical College, yeah. So when he would take us there, I have seen him giving lectures to the students there. So Devamrit Prabhu would present him as a role model for the other medical students in those days. So he's a very senior devotee in Chopari temple. In Pune, we invite him often for the Radhashtami festival. He's very, very expert in speaking pastimes. You heard a lot of his qualifications about being a doctor and doing so much activities. But the other side of his personality is a very great devotee. And he can give us the spiritual eye to see the Dham when we are moving around in the morning, every morning to different places. Let us welcome Vishwarup Prabhu with 3 loud Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol! Says Vishwarup Prabhu ki. हरे कृष्णा आज की कथा हिंदी में होगी फॉर तेलुगु डिवोटीज తెలుగు భక్తులకి ట్రాన్స్లేషన్ 88.3 ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ 88.3 ఇందులో మీరు తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ వినొచ్చు హరే కృష్ణ ఆల్ ద డివోటీస్ కెన్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ప్లీజ్ जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 everybody please chant you can do better we are in the dham, so we have to be very enthusiastic to our best capacity to chant the holy name. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Louder. All those devotees also can chant. All people on the chair. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Nobody is chanting there. No one. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Pukaro. Haribo. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Jai Jai Shri Radhe Shyam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Jayatam Saratau Pango Mama Mandamatirgati Matsarvasva Padambojo Radha Madana Mohana Divyat Vrindaranya Kalpadrumadaha Srimad Ratnagara Simhasanastau
श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी बंसीवटतटस्थितः कर्षणवेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियेस्तु नः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना मई की, श्री गिरि गोवर्धन की, श्री गोपेश्वर महादेव की, श्री वृंद देवी की, श्री ललित श्री सुबल एंड उज्जवल की, श्री ललिता विशाखा की, राधा कुंड श्याम कुंड की, श्री श्री लाडली लाल की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की। जय जय श्री राधे श्याम। हिंदी और इंग्लिश? हिंदी। सबको हिंदी समझ में आता है? जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए तेलुगु में अनुवाद है, तेलुगु ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले मैं इस्कॉन पुणे, इस्कॉन हैदराबाद, स्पेसिफिकली हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सब लोगों का भी धन्यवाद है क्योंकि आपने मुझे आपके बीच में यहाँ बुलाया, ये सम्मान दिया यहाँ बैठकर बोलने के लिए। वृंदावन धाम में बैठकर वृंदावन धाम के विषय में, राधा कृष्ण के विषय में, ग्वाल बालों के विषय में, गोपियों के विषय में, भगवान के मंदिरों के विषय में चर्चा करना ये परम भाग्य है, वो भी कार्तिक महीने में। इसलिए मैं आपका अनंत बार ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद है, आप इतनी बड़ी संख्या में श्री वृंदावन धाम में आए हैं इस सुंदर कार्तिक पर्व में, तो आप सबको बधाई है। और सबसे पहले ही मैं आप सबके लिए श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप सबकी वृंदावन यात्रा आध्यात्मिक रूप में सफल हो। शरीर से आपको कुछ सुविधा मिले ना मिले, वो मैं जानता हूं कि बहुत सारी अच्छी व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। लेकिन ये सारी मुश्किलों के माध्यम से आप सब लोगों को श्री वृंदावन धाम में आध्यात्मिक प्रवेश और आध्यात्मिक निवास प्राप्त हो, श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके लिए मैं आपके लिए राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। 1986 में हिज होलीनेस राधानाथ महाराज यहाँ पर 1971 में रहने के बाद 15 साल के बाद वृंदावन आए थे। उसके पहले जब आए थे तभी वो इस्कॉन में नहीं थे। उसके बाद में उन्होंने इस्कॉन ज्वाइन किया, प्रभुपाद का शरण दीक्षा प्राप्त की। लेकिन 71 में लौटने के बाद उनको 15 साल तक वापस मौका नहीं मिला यहाँ आने का। तो जब 86 में आए वो, तो 86 में बड़े ही आश्चर्य से वो ऐसे ही आए थे इंडिया में घूमने के लिए, लेकिन उनको बताया गया कि आपको भी यही रहना है परमानेंट। मोस्ट सरप्राइजिंगली ही वाज टोल्ड। तो फिर वो यहीं रह गए और तब से हमारे हो गए और हम उनके हो गए। हरि बोल। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया होगा
सबसे पहले 86 में उन्होंने वृंदावन की यात्रा अरेंज की। आज आप लोग भी, मैंने सुना 1200 है, उस यात्रा में हम लोग केवल 22 लोग थे। और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, द्वारकाधीश प्रभु, माधवानंद प्रभु, गिरिराज प्रभु, वैष्णव सेवा प्रभु, बहुत सारे डॉक्टर्स थे। और उनकी पत्नियां भी थी, होने वाली पत्नियां, हो गई पत्नियां, सब पत्नियां, लेकिन सब मिलकर नंबर 22 था। और उसमें कृष्णचंद्र प्रभु और श्रीनाथ जी प्रभु और कुछ लोग 2 दिन के बाद फ्लाइट से आए थे और उन्होंने बरसाना में ज्वाइन किया था हमको। तो वो हम लोग जब आए थे तो मथुरा स्टेशन में एक 3rd क्लास ट्रेन से अनरिजर्व्ड आए थे। तो महाराज हमें मथुरा स्टेशन में रिसीव करने के लिए आए थे। आज हम लोग केवल स्वप्न दे सकते हैं कि महाराज आए हैं हमको रिसीव करने के लिए लेकिन वो हुआ था उस समय, और स्टेशन भी बहुत गंदा था। तो महाराज ने हमको स्टेशन पे ही बैठकर एक वेलकम प्रवचन दिया था। यू कैन इमेजिन, हाँ, आज ये कल्पना करना भी इम्पॉसिबल है। कभी कभी सपनों में भी देख सकते हैं, लेकिन सपनों में भी कहा जाएगा ये नहीं हो सकता है। तो महाराज ने हमको वृंदावन धाम का जो वेलकम दिया उस समय, वो इतना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वृंदावन में हम लोग ट्रेन का टिकट निकाल के, फ्लाइट का टिकट निकाल के, टैक्सी करके, कमरा बुक करके, प्रसाद का इंतजाम करके, हाँ, ये सब कुछ नहीं हो सकता है। वृंदावन धाम में प्रवेश जो है वो राधा रानी की कृपा से होता है। तो महाराज ने बहुत सारी बातें बताई वृंदावन के बारे में, पहले भी बहुत बताई थी, लेकिन उसमें एक वाक्य उन्होंने बताया था, और मेरी आपको विनती है कि सब लोग सुन लो उसको। तो फोन पे बात कर रहे हैं, फोन बंद करके इस बात को सुनो, क्योंकि आप लोग सब लोग वृंदावन में प्रवेश करने के लिए आए ना। वास्तविक प्रवेश आपको सबको चाहिए ना। तो महाराज ने कहा था कि वृंदावन में कदम रखते ही, वृंदावन से वापस जाने तक, हम सब लोगों को हृदय के अंदर के कोने में राधा रानी की तीव्र प्रार्थना करते रहनी चाहिए। फ्रॉम द पॉइंट यू एंटर वृंदावन धाम टिल यू लीव वृंदावन धाम, you have to pray intensely for the mercy of Radharani at the core of your heart constantly. क्योंकि वृंदावन धाम में श्री कृष्ण प्रवेश दे सकते नहीं। वृंदावन धाम की जो अधिष्ठात्री है, द क्वीन, द कंट्रोलर, द रियल मर्सी गिवर, जो वृंदावन धाम का निवास दे सकती है, वो श्रीमती राधा रानी है। और श्री कृष्ण भी उनके अधीन रहते हैं। वृंदावन धाम में कोई भी जय श्री कृष्णा नहीं कहता है। कुछ लोग आते हैं नाथ द्वार से वगैरह वगैरह, लेकिन 99.99% लोग यहां पर क्या कहते हैं? राधे राधे, जय श्री राधे। और राधे राधे पुकारने से यहाँ पर राधा रानी बहुत जल्द सुनती है, और उसके कारण श्री कृष्ण भी सुनते हैं। क्योंकि राधा रानी का नाम जो पुकारते हैं तो कृष्ण सोचते हैं कौन मेरी प्रियतमा का नाम पुकार रहे हैं। अगर किसी माता का बच्चे का नाम कोई वहां से पुकारेगा तो बच्चा बाद में सुनेगा, पहले माँ सुनेगी कि मेरे बच्चे को कौन पुकार रहा है। उसी प्रकार से राधा रानी का नाम पुकारते ही राधा रानी भी सुन लेती है और श्री कृष्ण भी तुरंत सुन लेते हैं। उनको केवल पुकारेंगे तो गारंटी नहीं है कि वो सुनेंगे। इसलिए वृंदावन में कण कण बोले श्री राधा राधा, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा, लता पता बोले श्री राधा, जमुना पे राधा राधा, हर जगह पर राधा रानी का नाम पुकारा जाता है। उनका साम्राज्य यहाँ पर है। यहाँ पर एक जमुना किनारे पे स्थान है, उसका नाम है इमली तालाब। वहां पर राधा रानी का अभिषेक किया गया था गोपियों के द्वारा। वो स्थान कल के दिन प्रकट हुआ था। जिस दिन गोवर्धन पूजा हुई उस दिन इंद्र ने गोवर्धन के पूजा के बाद में जो भी कुछ लीला हुई गिरिराज धरण की, उसके बाद में कृष्ण का अभिषेक किया था और उनको गोविंद का नाम दिया था। उसी दिन गोपियों ने इमली तला में राधा रानी का अभिषेक किया और उनको वृंदावनेश्वरी का नाम दिया।
तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को सबको विनती है, हमारा मन जो है ना वो बहुत यहाँ वहां भटकता है। पहले से ही प्लान करके रखा है, लोही बाजार जाना है, बांके बिहारी के पीछे की टिक्की खाना है, लस्सी पीना है, ऐसा बहुत सारा हमारे में प्लान नित्य लीला है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि कल यहाँ पर शाम को हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज आने वाले हैं, तो इस समय वे लीला नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या कह रहा था बताइए। तो राधा रानी यहाँ की सम्राज्ञी है, शी इज द क्वीन ऑफ वृंदावन। और कृष्ण भी यहाँ प्रवेश दे सकते नहीं, राधा रानी प्रवेश देती है, इसलिए उनकी कृपा याचना हम करना बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा था कि हमारा मन यहाँ वहां भटक सकता है कई चीजों से। कहते हैं कि कृष्ण जहां पर थे वहीं पर कंस था। ऐसा था क्या कि कृष्ण वृंदावन में थे और कंस हैदराबाद में था? नहीं था, है ना। यानी जहां कृष्ण होते हैं वहीं माया होती है। और कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा कोरे, निकटस्थ माया थारे झापटिया धोरे। तो माया किधर रहती है? दूरस्थ नहीं, निकटस्थ। तो यहां पर जितनी माया बंबई में नहीं है, जितनी माया हैदराबाद में नहीं है, पूना में नहीं है, मद्रास में नहीं है, उतनी माया यहां पर है, कृष्ण के बाजू में ही है। और क्या इंतजार कर रही है? जैसे ही आपका ध्यान यहां पर आने के बाद भी कृष्ण से हटेगा तो माया तुरंत पकड़ लेगी। आप जितना झपट कर मुंबई में नहीं पकड़ेगी, क्योंकि वहां पर कृष्ण ही नहीं है। कृष्ण लेकिन इतने प्रबल रूप से उपस्थित नहीं है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि हम वृंदावन आए हैं, यहाँ पर तो माया है ही नहीं, सब कृष्ण ही कृष्ण है। नो, इफ यू आर नॉट अलर्ट, अगर आप सावधान नहीं है तो फिर यहां पर माया बहुत अच्छी तरह से झपट कर हमको पकड़ सकती है। इसलिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात वृंदावन में क्या है? राधा रानी की हृदय में प्रार्थना करना और उसी पे अपना फोकस रखना, अपना चित्त जो है उसी पर एकाग्र रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार नहीं बार बार भी कहा जाए तो भी कम है, क्योंकि यहां पर भटकने के लिए बहुत रास्ते हैं। एक तो मैंने बता ही दिया आपको, वहां पर जाना बुरा नहीं है, लेकिन आदमी फंस जाता है वहां पर। पूरी जो प्रार्थना करने की सीक्वेंस आपने बना के रखी है ना मन में, राधा रानी की, राधे किशोरी दया करो, ये बोलने का आपको अभ्यास करना है, वो वहां पर जाके टूट जाता है। क्योंकि वृंदावन की भूमि जो है इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। वृंदावन की भूमि आध्यात्मिक, केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए, राधा और कृष्ण की कृपा बटोरने के लिए है, उनके चरणों का आश्रय लेने के लिए। हम सब कुछ छोड़कर यहां पर आते हैं। आप लोगों ने अपना बिजनेस, नौकरी, जो भी कुछ है छोड़ के यहां पर आए हैं। साल में एक बार मिनिमम आना चाहिए। क्यों आते हैं हम लोग? राधा और कृष्ण के चरणों में शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। वी कम हियर टू टेक शेल्टर ऑफ द डीटी ऑफ द होली धाम, जो यहां पर राधा और कृष्ण है। और इस धाम की विशेषता क्या है? वृंदावन धाम सर्वोच्च धाम है। जितने भी धाम भगवान ने पृथ्वी पर प्रकट किए हैं तो सब में सर्वोच्च धाम वृंदावन धाम है। क्योंकि इसकी एक विशेषता है कि बाकी जितने भी धाम है, जैसे बद्रीनाथ है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, श्रीरंगम है, अयोध्या है, सिंहाचलम है, जितने भी धाम भगवान ने बनाए हैं वो सब के अंदर भगवान को भगवान के रूप में पहचानते हैं। लेकिन श्री वृंदावन धाम में भगवान अपना भगवान का पोजीशन छोड़ के आते हैं। यहां पर कोई उनको जानता नहीं है को भगवान है। वो किसी का बेटा है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का ग्वाल बाल फ्रेंड है, किसी का गौचारण करने वाला फ्रेंड है, मोरों के लिए वो एक सुंदर व्यक्ति है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि वो भगवान है। एक भगवान की अनेक मायाएं हैं। हाँ, परास्य शक्ति विविधई व सूयते, उसमें एक माया है जगन मोहिनी माया। दशम स्कंद में जब श्री कृष्ण बलराम कंस को मारने के बाद में वसुदेव देवकी को चरण छूने के जाते हैं
तो वहां पर इस नाम का उल्लेख आता है, जगन मोहिनी। ये जगन मोहिनी माया क्या करती है? जगन मोहिनी माया शुद्ध भक्तों के चित्त से या बुद्धि से इस ज्ञान को हरण कर लेती है, जिससे वो जानते हैं कि भगवान भगवान है, श्री कृष्ण परम भगवान है। ये नॉलेज वो शुद्ध भक्तों के मन से, बुद्धि से डिलीट कर देती है। उसके बाद में शुद्ध भक्त जो यशोदा है, देवकी है, सॉरी यशोदा है, नंद महाराज है, रोहिणी है, ग्वाल बाल, श्रीदामा, राधा रानी, ये सब भूल जाते हैं ये कौन है। फिर उनको डांट सकते हैं। और भगवान भी जब भगवान का अपना रूप छोड़ के आते हैं तो एकदम खुलेआम घूमते हैं, चोरी करते हैं, शरारत करते हैं, नटखट व्यवहार करते हैं, हाँ, हर प्रकार की चटपटी लीला करते हैं। वो कब कर सकते हैं? अगर भगवान के रूप में आएंगे तो बहुत ज्यादा नियम पालन करना पड़ता है उनको। ही कैनॉट बी हिमसेल्फ। लेकिन वृंदावन धाम में अपना खुद का स्पेस ढूंढने के लिए भगवान आते हैं, जहां पर कोई उनको जाने नहीं, पहचाने नहीं कि वो भगवान है। क्योंकि बड़े आदमी को हर समय, हर स्थिति में सम्मान 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 स्वीकार करते रहना कभी कभी बहुत बोर हो जाता है। ऑल टाइम पीपल आर ऑफरिंग दंडवत प्रणाम, ऑफर ओबेजेंसेस। कोई स्तुति गायन कर रहा है, कोई पुरुष सूक्त गा रहा है, कोई ब्रह्म संहिता गा रहा है, कोई आरती उतार रहा है, कोई फूलों की माला पहना रहा है, बार बार लगातार कंटिन्यूअस। ये जब होता है ना, तो उस व्यक्ति को भी लगता है कि थोड़ी जगह चाहिए जहां पर कोई मुझे हाथ नहीं पहनाएगा। तो वो स्पेस है वृंदावन, ये भगवान की प्राइवेट स्पेस है, जहां पर कोई उनको जानता नहीं है। और कब कभी कोशिश हो जाती है भगवान का भगवानपन, भगवान की स्थिति अगर प्रकट भी हो जाती है तो वो ज्यादा देर वृंदावन में टिकती नहीं है। भगवान ने मुंह खोला, ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, माता बोले अरे बाप रे ये तो भगवान है, तो मेरा बेटा समझकर मैं डांटती थी उनको कितनी बार, अरे बाप रे, हाँ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तुरंत श्लोक चालू हो गए। तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा, मुंह बंद कर दिया, मैया सब भूल गई। क्या देखा? भगवान अंतर्धान हो गए चंद्र सरोवर में, रासलीला में, और चतुर्भुज नारायण बन के रोड पे खड़े हो गए। तो गोपियों ने उनको ही पूछा आपने कृष्ण को देखा है क्या किधर? तो 4 हाथ में से 1 हाथ पे बताया इधर गए। फिर राधा रानी आई, उन्होंने भी यही पूछा आपने हमारे कहीं कृष्ण को देखा है? तो राधा रानी ने जब पूछा तो राधा रानी के माधुर्य प्रेम की वजह से श्री कृष्ण के 4 भुजा में से 2 भुजा जो है अपने आप पिघल गई। श्री कृष्ण के नियंत्रण के बगैर श्री कृष्ण डिड नॉट मेल्ट, उनके कंट्रोल के बाहर अपने आप पिघल गई। शंख चक्र पद्मगदा अपने आप गायब हो गए, अपने आप बचे हुए 2 हाथ में मुरली आ गई और अपने आप भगवान 2 हाथ से मुरली बजाने लगे। नॉट आउट ऑफ हिज डिजायर, द पावर ऑफ राधा रानी फोर्स्ड हिम टू लूज हिज 2 आर्म्स, टू लूज फोर थिंग्स, शंख चक्र पद्मगदा, और मुरली बजाने के लिए भगवान को मजबूर किया। इसका अर्थ क्या होता है? श्री वृंदावन धाम माधुर्य धाम है, यहां पर ऐश्वर्य है भगवान का, पूर्ण ऐश्वर्य यहां प्रकट है, लेकिन ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं होता है। ऐश्वर्य इज इनइफेक्टिव। यशोदा के मन में, राधा रानी के मन में, गोपियों के मन में, ग्वाल बालों के मन में सब जगह माधुर्य है। माधुर्य साख्य, माधुर्य दास्य, माधुर्य वात्सल्य और श्रृंगार माधुर्य, ये सब यहां पर प्रधान है। इसमें हमको प्रवेश करना है इस भाव से। ये नहीं कि कृष्ण को भूल जाए भगवान है और हम जैसे भी कहे व्यवहार कर सकते हैं, उसलिए नहीं, क्योंकि यहां का जो रस है वो माधुर्य प्रधान है, और माधुर्य प्रधान हम नहीं है, हम अभी साधना भक्त हैं। साधना भक्ति में क्या होता है? सबसे पहले प्रिंसिपल क्या है कि मैं आत्मा हूं एंड कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। कृष्ण भगवान परम पुरुषोत्तम है। यहीं से हमारी साधना शुरू होती है। तो हमारी साधना की नींव यह है कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है और उनको हमको प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है, हम उनके अंश है, हमें उनकी सेवा करके उनके चरणों में शरणागति प्राप्त करके उनकी प्राप्ति करनी है, उनके धाम की प्राप्ति करनी है। तो ये समझना सबको जरूरी है। यहां पर प्रवेश करने के लिए एक और बात कही जाती है, वो है सखी भाव। सखी भाव मतलब सखी नहीं बनना है। सखी भाव का मतलब है, सखियों का भाव का अर्थ क्या है? सखियां भगवान से 100% शरणागत रहती है, हमेशा प्रपन्न, हमेशा
सरेंडर रहती है भगवान से, और हमेशा विनम्र रहती है। कोई गर्व नहीं होता हमको किसी बात का, भगवान के पार्षद हैं हम, इस बात का भी गर्व नहीं होता है। और निरंतर सेवा में मग्न रहते वो। वृंदावन धाम के अंदर प्रवेश करने का राज क्या है? वो है सेवा भाव। आप लोग 1200 लोग यात्रा में आए हैं, 24 बसें जाने वाली है, कितनी सेवा की आवश्यकता है? बुजुर्गों को पहले बैठना देना है, बच्चों को पहले बैठने देना है, भोजन के लिए भी बुजुर्गों को, बच्चों को जो बीमार है उनको पहले देना है, और खुद को लास्ट में रखना है। प्रसाद सेवन में भी दूसरों को खिला के बाद में लेना है। कोई असुविधा होगी तो पहले दूसरों को सहायता करनी है और खुद की सुविधा बाद में देखनी है। अगर प्रसाद बांटते बांटते आपके लिए जब आपका टर्न आएगा खाने का एंड में और स्वीट ही खत्म हो जाएगा तो दुख नहीं करना है, मतलब सुख इसमें है कि मैंने सबको स्वीट खिला दिया। ये जो सेवा भाव है ये आपको अभी से, इस यात्रा से ही वृंदावन में प्रवेश देना शुरू करेगा। जब वृंदावन में हम अपने आप को केंद्र स्थान में रखते हैं तो वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है। जब वृंदावन में भक्तों को और भक्तों की भगवान श्री कृष्ण को केंद्र स्थान में रखते हैं तो हमें वृंदावन में प्रवेश मिलता है। भौतिक दुनिया को क्या सिखाती है? कीप योरसेल्फ इन सेंटर, खुद को केंद्र स्थान में रखो, आप ही मूर्ति हो, आप ही क्या कहते हैं भोग लेने वाले सबसे बड़े व्यक्ति आप हो, आप भोक्ता हो। और आध्यात्मिक जीवन में क्या सीखते हैं कि मैं भोक्ता नहीं हूं, कृष्ण सर्वलोक महेश्वर में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। एकदम कंसेप्ट चेंज हो जाता है। जहां पर हम है उस जगह पर हम कृष्ण को स्वेच्छा से बिठाते हैं और खुद वहां से उतर जाते हैं, और अपनी जगह पर कृष्ण को बिठाकर उनका पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उस व्यक्ति को वृंदावन धाम में प्रवेश मिलता है, क्योंकि वृंदावन धाम में यही होता है। भले यहां पर कृष्ण को कोई जानता नहीं कि वो भगवान है, फिर भी सब लोग कृष्ण को ही केंद्र स्थान में देखते हैं। ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ लव एंड सर्विस। प्रेम और सेवा का जो विषय है वो श्री कृष्ण है। प्रेम और सेवा का यहाँ पर विषय जो है, सर्वोत्तम विषय, वो श्री कृष्ण है। और राधा रानी यहाँ पर आश्रय विग्रह है, वो सबको आश्रय देती है। उनके चरणों में कई चिन्ह हैं, उसमें एक चिन्ह जो है वो महल का है। महल का चिन्ह जो उनके चरणों में है वो बताता है कि ये आश्रय देने वाली है। आश्रय किस चीज के लिए? श्री कृष्ण की सेवा में प्रवेश करने के लिए। उनके ही माध्यम से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, उनके ही माध्यम से हमें भक्ति प्राप्त होती है, उनके ही माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। श्री कृष्ण हमारे इष्ट हैं, ये सब उनकी कृपा से पता चलता है। तो ये सारा चीज जो है वो हमको सोचना है, क्योंकि यात्रा में आप प्रवेश करेंगे, यात्रा में आकर भी यात्रा से बाहर रहेंगे, ये कौन तय करेगा? ये आपकी चेतना तय करेगी। योर कॉन्शियसनेस, योर डिजायर, योर डिटर्मिनेशन, आपका निश्चय, आपकी चेतना, ये तय करेगी कि आप अंदर आएंगे कि आप बाहर रहेंगे। भगवान तो ऐसे खड़े हैं यहाँ पर आपको अंदर लेने के लिए, लेकिन हम लोग अगर इस भावना में नहीं है, इस चेतना में नहीं है, तो वृंदावन में हमको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसा मन में निश्चय पूर्वक धारणा है कि आप सब लोग इतना सब छोड़ के यहाँ पर आए हैं, जरूर वृंदावन में प्रवेश करने के लिए आए होंगे। यस और नो? तो इसलिए 7 दिन तक या 5-6 दिन तक इस चेतना को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा संकल्प और निश्चय की जरूरी है। यू नीड संकल्प, डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन, निश्चय, दोनों की आवश्यकता है। और यात्रा की शुरुआत में सब लोग बहुत अच्छे मूड में रहेंगे कि थोड़े बीमार पड़ेंगे, खांसी आएगी, फिर किसी को स्वीट नहीं मिलेगा, किसी को बस में फ्रंट सीट नहीं मिलेगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारी इच्छा की तीव्रता और संकल्प की तीव्रता जो है कम कम होती जाएगी। हम लोगों को फ्रॉम मोमेंट 1, पहले क्षण से लास्ट क्षण तक बढ़ते हुए उत्साह में, बढ़ते हुए निश्चय में काम करना है। इसलिए सबसे पहले धाम में आने के बाद सवेरे जल्दी उठना है और जल्दी उठकर भगवान को पुकारना है। केवल 16 माला फिनिश नहीं करना है, 16 माला जप करना है। और केवल 16 माला जप नहीं करना है,
16 माला में 1728 बार इंटू 16 टाइम्स भगवान को पुकारना है। पुकारना एक अलग बात होती है, फिनिश करना एक अलग बात होती है। भगवान का नाम, भगवान अपने नाम में क्यों आते हैं? ताकि हम उनको पुकार सकें, उनका ध्यान आकर्षित कर सकें। तो इससे ये करने से चेतना की तैयारी हो जाती है। और दिन में संकल्प करना है जब करते समय कि मुझे भक्तों की सेवा करनी है, जो मिले वो सेवा करनी है। आई वॉन्ट टू सर्व द डिवोटीज। और जो सेवा में खुद का आनंद त्याग करके सेवा करते हैं भक्तों की, उनको सबसे ज्यादा धाम में प्रवेश मिलता है। आपकी यात्रा के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन्होंने कई दिन से प्लानिंग किया है, कई दिन से हम लोग कांटेक्ट में हैं। वो तब से वृंदावन में हैं, जब से हैदराबाद में थे, कई महीने से। बीच में आए थे एक बार एडवांस में, लेकिन जब से संकल्प किया है तब से आपकी सेवा में उन्होंने इतने घंटे गवा नहीं दिए, मतलब इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किया उसका। तो वो तब से वृंदावन धाम में है। इसलिए तब से वृंदावन धाम में है कि आप लोगों को सबसे तब से नहीं, अब से वृंदावन धाम में प्रवेश मिले। तो तब से वो प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो ये श्री वृंदावन धाम जो है नंबर 1 विशेष है, क्योंकि भगवान यहाँ पर भगवान के रूप में नहीं आते। नंबर 2 विशेष है कि भगवान की चरणों की रज जो है वो कहीं पर उपलब्ध नहीं है। वैकुंठ में भी भगवान के चरणों की रज उपलब्ध नहीं है। पृथ्वी पर जितने धाम है वहां पर भी भगवान के चरणों की धूल उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि जहां पर ऐश्वर्य है वहां पर भगवान पैर में रत्नों से भरे हुए चप्पल पहनते हैं, पादत्राण, बिजुवेल्ड, रत्नों जड़ित पादत्राण पहनते हैं जब भी चलने का मौका आता है। थिंक वन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक स्ट्रेंजर बॉक्स यहाँ पर रखना चाहिए, तो इमीडिएटली आई कैन स्विच ओवर टू दैट। और जब भगवान चलने का प्रयास करते हैं तो तुरंत रथ आ जाता है, दारू का रथ लेकर आते हैं, तो रथ में लेकर बैठ जाते हैं। तो भगवान के जो पैर है उनके तलुओं का स्पर्श जो है वो भूमि को होता ही नहीं है। और रज कब पैदा होती है? जब भगवान के चरणों का स्पर्श भूमि पर होता है तो रज निर्माण होता है। तो देयर इज नो चरण धूली इन द्वारका, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, रंगनाथ, अयोध्या, यहाँ पर कहीं भी भगवान के चरण की धूली नहीं है। जब प्रभु रामचंद्र पैदल चले थे अयोध्या से लंका तक, तो उनकी चरणों की धूल उस रास्ते में मिली थी कुछ समय के लिए, 14 ईयर्स ओनली, उसके बाद नहीं प्राप्त हुई। लेकिन वही भगवान श्री वृंदावन धाम स्पेशल क्यों है? क्योंकि वहां पर बिना चप्पल पहने आते हैं। इसलिए जन्म से ही उनके चरणों की धूली, चरणामृत उपलब्ध है। जन्म से कैसे उपलब्ध है? जन्म होते ही उन्होंने जमुना में छलांग लगाई और पूरा जमुना में डूब गए वो। और वसुदेव पुकार रहे हैं, कोई लो कोई लो कोई लो कोई लो, लाला को मेरे कोई लो, गिर रहा है। तो अपने चरणों का नहीं, पूरे अंग का जमुना को स्पर्श दिया उन्होंने, अंग संग दिया और जमुना को चरणामृत बना दिया आते ही। उसके बाद जब जब चले तब तब चरणों की धूल प्रकट हो गई। और एक वृंदावन धाम का महत्वपूर्ण खूबी है, वो है भगवान के चरण चिन्ह। यहाँ पर जगह जगह पर भगवान के चरण चिन्ह है। काम्य वन में है, वृंदावन में है, बरसाने में है, दाऊजी में है, वृंदावन में कई जगह पर है। सब जगह पर भगवान के चरण चिन्ह है। क्योंकि भगवान जब चलते हैं तो पृथ्वी देवी बहुत प्रफुल्लित हो जाती है और भगवान के चरण चिन्ह निर्माण होते हैं। जब भगवान पत्थर पे चलते हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं उनके चरण स्पर्श से। पत्थर भगवान को कष्ट न हो इसलिए मुलायम हो जाते हैं मक्खन की तरह, इसलिए उनका चरण चिन्ह निर्माण होता है। गर्ग संहिता में लिखा है कि भगवान के और बलराम जी के और राधा रानी के चरण चिन्हों का दर्शन करने से या हस्त चिन्हों का दर्शन करने से दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। ये गर्ग संहिता का विधान है। इसलिए एक और हमारा उद्देश्य होना चाहिए, जहां पर मौका मिलेगा वह भगवान के चरण चिन्ह का। लेकिन अगर भगवान के चरण चिन्ह नहीं भी दिखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पर कण कण में है। यहाँ पर रज का ऐसा कोई कण नहीं जहां पर भगवान के चरण चिन्ह नहीं है या चरणों का स्पर्श नहीं हुआ है।
हर कण पे भगवान के चरणों का स्पर्श है। और ये जो रज है ब्रज की, वो इतनी महान है, एक मिनट के लिए समझ लो, समझ में कोई नुकसान नहीं है, कल्पना करने में क्या नुकसान है। ये कल्पना कीजिए कि आप अकेले सारे ब्रह्मांडों के दौलत के मालिक हैं। यू आर द बॉस, द ओनर ऑफ ऑल द वेल्थ ऑफ ऑल द वैकुंठ प्लैनेट्स, जहां पर अनंत लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती रहती है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानो। लेकिन आप यहां पर सारे वैकुंठों का धन लेकर भी ब्रज की, वृंदावन की एक रज का कण भी खरीद नहीं सकते। यू कैन नॉट परचेस, क्योंकि ये रज जो यहाँ की है वो चिंतामणि है, हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। इस रज कण में, भगवान के चरणों का स्पर्श हुए इस रजक कण में पूरे प्रेम का सार छुपा हुआ है। इसलिए साधु संगत जितने भी लोग हैं वो भगवान के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए वृंदावन में आते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ नंगे पैर घूमते हैं। और वही भगवान जिनके चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए साधु संत और देवी देवताएं वृंदावन में आते हैं, वही भगवान बरसाने में जाकर खुद दंडवत करते हैं और वहां की रज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वहां की रज में राधा रानी घूमती है। दंडवत करते हैं, साष्टांग सिर सावंद प्रणाम करते हैं, लोट पोट हो जाते हैं, ये रोल्स इन द डस्ट। उसके बाद में अश्रु बहाते हैं, अश्रु भरे रज में लोटपोट हो जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं राधा रानी की कृपा के लिए। अगर भगवान यहाँ पर राधा रानी की कृपा के लिए गिड़गिड़ाते हैं, पुकारते हैं, तो हमें तो पुकारना ही चाहिए ना। हम कौन है भगवान के सामने? भगवान ने यहाँ पर आदर्श रखा है। इसलिए हर समय यहाँ पर रहते हुए हमें सावधान रहना है कि हम सब लोग भगवान के माधुर्य भूमि में हैं। We have to be conscious constantly. यहां पर रहते हुए कभी किसी का अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन धाम जो है वो माधुर्य धाम होने के नाते यहां पर पद्म पुराण में लिखा है 100,000 टाइम्स, 1,00,000 बार यहां पर हर कार्य का परिणाम होता है। अपराध करेंगे छोटा सा तो उसका 1,00,000 अपराध को किया ऐसे आपको आपके अकाउंट में लागू हो जाएगा। एक भगवान का नाम लिया आपने, बोलो कृष्णा हरे कृष्णा, 1,00,000 बार हरे कृष्णा बोलने का लाभ आपको ऑलरेडी आपके अकाउंट में जमा हो गया। 16 माला जप करेंगे रोज। कैसे बताए मैंने? पुकारते हुए, फिनिश करते हुए नहीं, पुकारते हुए करेंगे तो 1,00,000 इंटू 16,00,000 माला करने का लाभ मिलेगा आपको। यहां पर जब आप चलेंगे, यहां से वहां, वहां से यहां, इधर से बाहर, बाहर से अंदर, या धाम में दर्शन करने के लिए चल रहे हैं, हर एक कदम पे आपको अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ मिलेगा। आपको जानकारी भी नहीं होगी, तभी भी मिलेगा। और रात को आप सोएंगे तो आपको महाविष्णु कैसे योग निद्रा करते हैं, वो योग निद्रा करने का लाभ मिलेगा। तो सबको पसंद है और अच्छा लगता है। योग निद्रा इज अ ब्यूटीफुल थिंग यू कैन डू। लेकिन घर में सोते हैं तो तमोगुण का लाभ मिलेगा। वृंदावन में सोएंगे रात को तो योग निद्रा का लाभ मिलेगा। ऐसे अनंत लाभ है यहाँ पे। इसलिए व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बीइंग कॉन्शियस, सावधान रहना कि हम वृंदावन धाम में हैं। कोई भी कार्य करने के पहले सावधान रहना, सोच समझ के करना, एक लंबी सांस लेना। थोड़ा सा आवाज कू हो रहा है। हरे कृष्णा। तो इसलिए श्री वृंदावन धाम में रहते हुए कोई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ का हर पेड़ जो है वो कल्प वृक्ष है। इसका अर्थ ये होता है जैसे रज का कण है वो भी चिंतामणि है, वैसे कल्प वृक्ष का मतलब आप किसी भी पेड़ के पास जाओगे और मन की इच्छा प्रकट करोगे तो वो इच्छा पूरी की जाएगी। इसलिए पेड़ के पास रह के ये मत मांगना मुझे लड़का हो जाए, मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाए, मेरे लोन पास हो जाए, मेरा घर हो जाए। ये सब यहाँ पर आके मत मांगना। यहाँ पर आकर ये सब मांगना ये मूर्खता का लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर आपको राधा कृष्ण जुगल जोड़ी के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आकर चिरंतन प्राप्ति करने के बजाय
टेम्पररी वस्तुओं की मांग मत करना। राजा के पास जाकर 2 रोटी मांगना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। जो जीवन भर के रोटी की व्यवस्था कर सकता है उसके पास जाकर 2 रोटी मांगना इज अ वेरी फुलिश थिंग। उसी प्रकार से श्री कृष्ण के धाम में आकर, यहां पर आकर श्री कृष्ण के पास या पेड़ के पास खड़े होकर बोलना कि मुझे धन दो, आनंद दो, भोजन दो, ये दो, घर दो, ये तो कर्मों के द्वारा आ जाता है। लेकिन यहाँ के पेड़ आपको राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी की भक्ति दे सकते हैं। यहाँ की हर गाय कामधेनु है, वो भी आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को भी पहले जब वो आकर उन्होंने बछड़ों को चुराया, ग्वाल बालों को चुराया, तभी वृंदावन में होकर भी उनको वृंदावन धाम के दर्शन नहीं हुए थे। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं, वृंदावन धाम में केवल शरीर में आने से वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है और वृंदावन के दर्शन भी नहीं होते हैं। जब वो नतमस्तक हुए ब्रह्मा जी पश्चाताप में, तो उनको पता चला कि मैंने अपराध किया है, अच्छा नहीं किया मैंने, और उसका पश्चाताप करके जब प्रणाम किया तब भी भगवान ने उनको माफ नहीं किया। फिर उन्होंने इस ब्रज रज का आश्रय लिया और दंडोती परिक्रमा की पूरे ब्रज मंडल की। तो गोवर्धन परिक्रमा के प्रमुख प्रणेता श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने सबसे पहले गोवर्धन परिक्रमा की थी और सबसे पहले ब्रज मंडल की दंडोती परिक्रमा ब्रह्मा जी ने की थी। जब ब्रह्मा जी ने इस रज का आश्रय लिया जो कृष्ण और राधा रानी के चरणों से पुनीत है, तब जाकर ब्रह्मा जी को यहाँ का रजक कण चिंतामणि दिखाई पड़ा, हर गाय कामधेनु दिखाई पड़ी, हर पेड़ कल्प वृक्ष दिखाई पड़ा। तब जाकर पूरे ग्लोरी, पूरे गौरव के साथ वृंदावन धाम का दर्शन उनको हुआ। ये मैं ब्रह्मा जी की बात कर रहा हूं। तो हमारे एक ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक है वो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द ब्रह्मांडा, टॉप मोस्ट लिविंग एंटिटी इन दिस होल यूनिवर्स, उनकी बात कर रहा हूं मैं। उन्हें भी दर्शन नहीं हुआ जब तक वो उस चेतना में नहीं आए। कृपा से दर्शन होता है, हमारे प्रयास से दर्शन नहीं होता है। इसलिए सेवा इज द ओनली मीन्स टू एंटर वृंदावन। और वृंदावन धाम में बहुत सी चीजें हैं। भगवान मुरली बजाते हैं यहाँ पर। हम लोग महाभारत में देखते हैं ना, वो महाभारत में अर्जुन के साथ बैठे हाथ में मुरली घुमा रहे हैं और उधर मोरपंख पहना हुआ है, वो सब गलत है। क्योंकि वृंदावन के बाहर यहाँ पर कभी भी मुरली और मोरपंख नहीं गया। वो भगवान के आभूषण केवल वृंदावन के हैं, मुरली और मोरपंख यहाँ पर धारण करते हैं। और वो मुरली जो है उसके तान से सारे ब्रजवासियों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। गायों को, गोपियों को, ग्वाल बालों को, सबको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ऐसे बंसी जो है उनकी प्रिय सखी है वृंदावन धाम की, और वो उन्होंने यहीं पर यमुना किनारे पे उसका अध्ययन किया था राधा रानी के द्वारा। और वृंदावन धाम की विशेष चीजें हैं, वो है यमुना देवी। यमुना और गोवर्धन के बिना वृंदावन परिपूर्ण नहीं होता है। ये पूरा धाम से आए हुए हैं। भगवान ने यहाँ पर अपना धाम को 84 कोस के अंश में भेजा है और पूरी यमुना और पूरे गोवर्धन को भेजा है। इन तीनों के अस्तित्व से ही वृंदावन धाम को अर्थ प्राप्त होता है। इसलिए हमें इन सबको मन में कायम पूजना चाहिए। वृंदा देवी का सदैव स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वृंदा देवी यहाँ की सभी लीलाओं की ऑर्गेनाइजर है। सभी लीला जो भी हो रही है वो सब वृंदा देवी के निर्देश में हो रही है। उनके पास 1000 तोता है, वो सब जगह घूमते हैं ब्रज में और वहां का रिपोर्ट लाते हैं। फिर उसको रिपोर्ट को एनालाइज करके, प्रोसेस करके वृंदा देवी तय करती है कि आज की लीला कहाँ करनी है, और सब उसकी व्यवस्था भी करते हैं। तय करने के बाद ललिता विशाखा से उसका बीज आदेश ले लेती है और उस बीज आदेश को डेवलप करके पूरी लीला ऑर्गेनाइज करती है। तो इस वृंदावन में जो भी कुछ हो रहा है वृंदा देवी के ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, राधा रानी ललिता विशाखा के निर्देश में हो रहा है। आपका यहाँ पर आना वो भी उनके निर्देश में है। क्योंकि मैं जानता हूं बहुत लोगों ने यहाँ पर टिकट निकाला होगा, कुछ लोग कैंसिल भी हो गए होंगे ना लास्ट मोमेंट पे, कोई बीमार हो गया, कोई छुट्टी नहीं मिली, कोई और कुछ हो गया, कोई और कुछ हो गया। ये सब होता है क्योंकि यहाँ पर आते हैं लोग तो उनकी मर्जी से आते हैं। जिनको आना चाहिए, जिनको आना की योग्यता है, जो आने की इच्छा रखते हैं, वो सब लोग यहाँ पहुंच नहीं पाते।
जिनको वृंदा देवी चाहती है, राधा रानी चाहती है, वही यहाँ पर आ सकते हैं। इसलिए सब लोग हमेशा कृतज्ञ भावना में रहो। यहाँ पर ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ये मत समझना कि हम योग्य है इसलिए मांगे। देखो हमारा यहाँ होना ही हमारी योग्यता का प्रमाण है, जो प्रूफ दैट वी आर एलिजिबल। नो, हर समय ये सोचो कि हम यहाँ पर आने के लिए एलिजिबल नहीं थे और नहीं है, फिर भी परम करुणा परम कृपा से हमको यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। और जो व्यक्ति कृतज्ञ भावना में है वही ये सोच सकता है और उसी को यहाँ पर प्रवेश मिल सकता है। Those who think they are qualified, they are not qualified, and those who feel they are unqualified, they are qualified. ये स्पिरिचुअल लाइफ का मैथमेटिक्स है, बिल्कुल उल्टा होता है। तो इसलिए अगेन एंड अगेन वी वुड लाइक टू से योर कॉन्शियसनेस इज मोर इंपॉर्टेंट। आपकी चेतना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये पृथ्वी पर भगवान को मथुरा मंडल बहुत पसंद है और मथुरा मंडल में भगवान को 137 वन बहुत प्रिय हैं। उन 137 वनों में भगवान को 108 वन बहुत प्रिय हैं और उन 108 वन में भगवान को 12 वन बहुत प्रिय हैं। उन 12 में से 7 वन जो है यमुना की एक तरफ है और 5 वन यमुना के दूसरी तरफ है। और इन 12 वनों में भगवान अपनी गिनी चुनी लीला करते हैं। उसके आगे की लीला गिनी चुनी गोवर्धन के आसपास करते हैं। उसके आगे की उत्कट लीला राधा कुंड श्याम कुंड में करते हैं और बरसाने में करते हैं। तो वो 12 वनों में सबसे अधिक प्रिय भगवान को वृंदावन है, सबसे अधिक प्रिय। एक वृंदावन है जो अब ज्योग्राफिकल पिन कोड 281121 जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, वो आजकल का लोकल वृंदावन है। लेकिन पौराणिक व्याख्या से वृंदावन जो है वो 20 कोस का है। पंचम योजनम रूपम, पंचम योजनम वनम एकम रूपम, ऐसा कहा गया है पद्म पुराण में कि पंचम योजन यानी 20 कोस। एक कोस 2.5 मील का होता है और एक योजन 8 मील का होता है। तो 20 कोस का ये वृंदावन है, जिसमें यमुना भी है, गोवर्धन भी है, नंदगांव भी है, बरसाना भी है, जावट कोकिलावन भी है। ये सब मिलकर पौराणिक वृंदावन बनता है। इसलिए जब भगवान गोकुल से निकले और उपनंद महाराज ने बताया कि हमको वृंदावन जाना है, तो वो इस वृंदावन की बात कर रहे थे। उस वृंदावन में नंद महाराज नंदगांव में सेटल हो गए और उस वृंदावन में वृषभानु महाराज राधा रानी को लेकर बरसाने में सेटल हो गए। लेकिन वो सब वृंदावन का ही हिस्सा है। और जमुना जी नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सब जगह प्रवाहित थी उस समय। अभी कालांतर में उसका प्रवाह बदल गया है। वो पूरे वृंदावन मंडल को प्रदक्षिणा करके, जैसे आंखों में होता है ना काजल, पूरा चारों तरफ होता है, उस तरह से यमुना जी वृंदावन को कवर करके चली जाती है। और वृंदावन की और एक विशेषता है, यहाँ पर यमुना जी जहां भी घूमती है सब जगह पाप नष्ट करती है। जब वृंदावन में आती है तो पाप के साथ पुण्य भी नष्ट कर देती है। और केवल पाप और पुण्य नष्ट नहीं करती है, तो वृंदावन में कृष्ण प्रेम भी देती है। यमुना जी का केवल स्मरण मात्र करने से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। यमुना जी का स्मरण, यमुना जी का दर्शन, यमुना जी का स्पर्श, आचमन, स्थान, चिंतन, मनन, ये सब कुछ करने से, उनके बारे में सुनने से, कथा सुनने से भी पाप पुण्य नष्ट होते हैं और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। ब्रज भूमि की ऐसी विशेषता है कि जब आप सफर करते हो, सब लोग याद रखना, नींद आएगी तो ठीक है, लेकिन नई नींद आती है, आप जग रहे हो, तो आप ब्रज भूमि को निहारना, प्रेम से निहारना। शास्त्र में लिखा है कि वृंदावन धाम को निहारने मात्र से, प्रेम से निहारने से मात्र से ही ये भूमि आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराती है। आपको 24 घंटे दिए गए हैं, उसमें आप कम से कम 12-13 घंटे बाहर रहेंगे। और जब भी देखेंगे खेत में, आप बीच में से जा रहे हो, दोनों तरफ खेत है, वो सारी ब्रज भूमि आपको कृष्ण प्रेम दिला सकती है। ऐसे इस भूमि की महती है। ये वृंदावन धाम भगवान को सबसे प्रिय होने के नाते भगवान ने अपनी सर्वोत्तम लीलाएं यहां पर की है। और सर्वोत्तम से सर्वोत्तम लीला कौन सी है? रास लीला। रास लीला ये भगवान का ऐसे लीला है जिसमें अपना सर्वोत्तम प्रेम जो जीव के प्रति भगवान व्यक्त कर सकते हैं, वो सर्वोत्तम प्रेम भगवान रास लीला के नृत्य के माध्यम से व्यक्त करते हैं।
the highest love that Sri Krishna can exhibit for a living entity is रास लीला। और वो रास लीला जो है वो सर्वोच्च प्रेम का आदान प्रदान भगवान ने वृंदावन में किया। श्रीमद् भागवत का हृदय भी रास पंचाध्यायी है। 10.29 to 10.33 ये 5 अध्याय जो है ये श्रीमद् भागवत कृष्ण लीला का हृदय है। द मोस्ट कोर ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, सबका सार है वो ब्रज की लीलाओं का, और वो उन्होंने यहां पर किया है। यहीं पर बंसीवट है जहां पर भगवान ने बंसी बजाई थी। यहीं पर भगवान ने बंसी बजाकर गोपियों को बुलाया था। सब गोपियां भाव विभोर हो गई थी, सब कुछ छोड़कर सर्वोच्च परित्याग करके वो यहां पर भगवान के शरण में आई थी। ये वो भूमि है, यहीं पर भगवान ने उनको रास में छोड़कर विरह का अनुभव दिया। प्रणय गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, सब कुछ गीत, गोपी गीत, वो सब कुछ यहां पर गाया गया है। ये भूमि में आप बैठे हो, यहीं पर ये सर्वोच्च पंच प्रेम उपासना इसको कहते हैं। 5 प्रकार के प्रेम की उपासना 5 गीतों से दशम स्कंद में 29 से 33वें अध्याय में गाई गई है, वो सब यहां पर हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ हमारे समझ में आएगा, कुछ हमारे पहुंच के बाहर होगा, लेकिन हम लोग उस भूमि में जरूर है। समझ में आया नहीं तो हमको उस रज का स्पर्श उपलब्ध है आज से, जिसमें ये सब लीलाएं संपन्न हुई है। और ये भगवान का नित्य धाम है, यहां पर भगवान की सारी लीलाएं नित्य रूप से होती रहती है। एक दृश्यमान वृंदावन होता है जो आपको दिखाई पड़ रहा है। हाँ, रास्ता है, गाड़ी चल रही है, मंदिर है इस्कॉन का, यहाँ पर बांके बिहारी का, वहां पर ये दृश्य वृंदावन है, दृश्यमान कहते हैं उसको। और एक है नित्य वृंदावन जो माया के पर्दे के पीछे है। जब माया पर्दा अपने इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से हटाएगी आपके लिए, तो आपको नित्य लीला का दर्शन होगा। लीला का दर्शन भी नहीं होगा तो कम से कम अनुभूति होगी कि यहाँ पर नित्य लीला चल रही है। यहाँ के पेड़ों में, कल्प वृक्ष में ये शक्ति है कि भगवान की नित्य होने वाली लीला जो हमको दिखाई नहीं पड़ती है, वो पेड़ों को दिखाई पड़ती है। और यहाँ के पेड़ वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष, वो सभी लीलाओं का सार जो है, भाव, वो ग्रहण करते हैं। पेड़ों के अंदर वो शक्ति होती है कि वो थोड़ा दूर रखना, लिटिल बिट अवे, बस बस बस। सब प्रकार के पेड़ में भाव होता है। जो भी चीजें उनके आसपास हो रही है उसका एक भाव का सार होता है, वो सार वो पेड़ ग्रहण करते हैं। और जो भी व्यक्ति उस पेड़ के तले जाता है, प्रार्थना करता है, बैठता है, कथा करता है, वो पेड़ उनको उन लीलाओं का सार जो है वो दे देते हैं। इसलिए परम पूज्य राधानाथ महाराज ने मुझे बताया था कि जब भी यात्रा लेके जाओगे तो कभी भी कथा करना हो तो पेड़ के सहारे कथा करना, क्योंकि पेड़ वो जो चेतनाओं का सार है, पेड़ के अंदर चेतनाओं का सार छुपा हुआ है। वो जो नीचे बैठकर उन कथा सुनते हैं, कथा बोलते हैं, उनको वो एम्पावर करते हैं उस भाव से। और हमें भी कथा करते समय यहाँ पर अनुभव है, जब हम कहीं और कथा करते हैं और यहाँ कथा करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम भी वही है, ज्ञान भी वही है हमारा, लेकिन यहाँ पर हमें ब्रज रज और ब्रज के वृक्ष का सहारा है, जो दिव्यता का स्रोत है और जिनकी वजह से दिव्यता प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ के पेड़ों को बार बार प्रणाम करना, बार बार आलिंगन करना, बार बार प्रार्थना करना उनसे। ब्रज की चेतना यही है, टू बी कॉन्शियस कॉन्स्टेंटली, टू बी प्रेफुल, टू बेग फॉर मर्सी, टू क्राई फॉर मर्सी, टू शेड टीयर्स बेगिंग फॉर मर्सी। ये ब्रज का निवास का रहस्य है। यहाँ पर लोग है ना, वो ऐसे रास्ते में चलते समय वो पत्थर रखते हैं, हाँ, दे मेक अ स्मॉल हाउस लाइक सिचुएशन। लेकिन यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। वो करते क्यों है कि अगर अगले जन्म में आना ही होगा तो यहीं पर जन्म दो, ऐसे हम लोग प्रार्थना करते हैं जब रखते हैं उसको। कुछ लोग उसको पक्का भी कर देते, सीमेंट लगाकर परमानेंट कर देते हैं। लेकिन केवल उतना करने से यहाँ पर जन्म प्राप्त नहीं होता है, जब तक वो तीव्र सेवा भाव हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। जब तक राधा कृष्ण की सेवा में हम लोग अपने आप को नतमस्तक, शरणागत, प्रपन्न नहीं कर देते हैं, तब तक हम यहाँ पर जन्म लेने के योग्य नहीं होते हैं। और यहाँ जन्म आपको राधा रानी देती है और कोई आपको यहाँ पर जन्म दे सकता नहीं है। सो यहाँ पर जो भी रहते हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, वो सब राधा रानी की परम कृपा प्राप्त है। चाहे धनी ना हो, दिखने में कुरूप हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, गरीब दिखते हो, गांव वाले, लेकिन राधा रानी की परम कृपा प्राप्त है। वो राधा रानी उनको सब अहंकार से मुक्त रखने के लिए सदैव
धन, विद्या, सौंदर्य इससे दूर रखती है। जो सबसे अधिक गर्व होता है धन का, उसके बाद में सौंदर्य का, उसके बाद में विद्या का। हर व्यक्ति को सबसे अधिक धन गर्व का होता है, धन का। फिर होता है अधिकार का, कि मैं ये फलाना प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना अध्यक्ष हूं। तो ये सबसे दूर रखने के लिए राधा रानी उनको इन चीजों से दूर रखती है, कृपा प्राप्त करने के लिए अपनी कृपा की छत्र छाया में रखती है। और ये उनका आखिरी जीवन है, इसलिए यहां पर रहते हुए कभी भी ब्रजवासियों का अपराध नहीं करना चाहिए, दिल नहीं दुखाना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है आपके ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, कहां आपको चीटिंग हो जाएगा, डोंट वरी, वो चक्र में नहीं पड़ना। 10 रुपए बचाने के लिए उनको अपराध मत करना, क्योंकि वो राधा रानी के प्रिय जीव हैं। वो क्या करते हैं, उसको क्या करना है, वो भगवान देख लेंगे, लेकिन हमें उनका अपराध नहीं करना है। धाम में रहने के कुछ नियम है इंपॉर्टेंट। एक है, ब्रजवासियों का अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। और कुछ समय के लिए आप सब लोग भी ब्रजवासी हैं, क्योंकि आप ब्रज का वास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ की हवा, यहाँ का पानी, यहाँ की निद्रा आप ले रहे हैं ना, तो आप भी ब्रजवासी है। ब्रजवासी कई टाइप के होते हैं। एक टाइप ब्रजवासी है जो यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सेकंड टाइप के ब्रजवासी हैं जो बाहर जन्म लिए हैं लेकिन यहाँ सेटल हो गए हैं। हमारे कितने इस्कॉन के डिवोटीज हैं, 3, 4, 5 हजार डिवोटीज अपने अपने देश को छोड़कर यहाँ पर घर लेकर परमानेंट यहाँ पर रहते हैं, साइकिल चलाते हैं, सिंपल रहते हैं बहुत। वो दूसरे प्रकार की ब्रजवासी है। तीसरे प्रकार के ब्रजवासी हम सब लोग हैं, वो कभी कभी आते हैं, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कार्तिक महीना पूरा आ जाते हैं। जो भी यहाँ रहता है वो ब्रजवासी है। तो इसलिए एक दूसरे का भी अपराध नहीं करना है। यहाँ पर रहते हुए एक दूसरे का भी अपराध करेंगे, झगड़ा करेंगे, दिल दुखाएंगे, तो आपको ब्रजवासी अपराध का ही परिणाम भोगना पड़ेगा। और आपको यहाँ पर रहने के बाद में यहाँ पर ऐसे रहना है, नम्रता से, कृतज्ञता से, प्रार्थना पूर्वक, दिल के कोने में प्रार्थना करते हुए, वैष्णवों की सेवा करते हुए, ऐसे यहां पर आपको रहना है कि चौथे टाइप का ब्रजवासी बन के आपको घर जाना है। वो क्या है? चौथे टाइप का ब्रजवासी वो है जो यहां पर रहते हुए हृदय में ब्रज को बसा लेता है। मन मोर वृंदावन, इसका हृदय वृंदावन हो जाता है, यानी वृंदावन का सार रूप में भाव जो है वो ग्रहण करता है और वृंदावन को अपने हृदय में लेकर घर जाता है। और जहां पर भी रहता है दुनिया में, जितना भी समय रहता है, वो वृंदावन के ही चिंतन में रहता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? श्रील प्रभुपाद, जो जहां पर जब भी आए, पहले भी आए थे, बाद में लास्ट में भी आए और कई साल रहे भागवत का अनुवाद करते करते। वृंदावन के भाव के निचोड़ को उन्होंने हृदय में स्वीकार किया और वो हृदय में वृंदावन लेकर वो परदेश गए और जहां जहां गए वृंदावन को उन्होंने वितरित किया, वृंदावन को बांटा, उन्होंने लोगों को वृंदावन दिया। और उसके परिणाम के स्वरूप लोग इतने प्रभावित हो गए कि वृंदावन क्या है ढूंढते ढूंढ के इस ब्रज में आ गए। उसमें से कई लोग ब्रजवासी बन गए। तो आप लोगों को यहां से जाते समय श्री वृंदावन धाम को स्मृति रूप में, भाव रूप में, सेवा भाव के रूप में हृदय में ग्रहण करके जाना है, तब जाकर आपकी वृंदावन यात्रा सफल होगी। नहीं तो भागवत में लिखा है स एव गोखरहा, हाँ, गाय भी आती है यहाँ पर, सुअर भी आता है, गधा भी आता है, ऊंट भी आता है, हाथी भी आता है, सब आते हैं यहाँ पर, लेकिन उनको कुछ चेतना में परिणाम नहीं होता है। चेतना में आपके हमारे परिणाम हो सकता है, बदलाव हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्यों की चेतना परिवर्तनशील है, मनुष्यों की चेतना प्रगतिशील है। मनुष्य की चेतना आपको भगवान की चरणों तक पहुंचा सकती है, और वो भगवान की चरणों तक पहुंचाने के लिए ये वृंदावन धाम बहुत शक्तिशाली है। भागवत में एक श्लोक है जिसमें लिखा है कि जब कृष्ण बलराम ने यात्रा करते हुए गोकुल से यात्रा करते वृंदावन में प्रवेश किया, तो वृंदावन के दृश्य को देखकर उत्तम प्रीति उनके हृदय में निर्माण हो गई, जो सब निर्माण को प्रीति देते हैं। That those personalities who give love to everybody in the whole creation, उनको उत्तम प्रीति देने वाला ये वृंदावन है। उनको भी प्रीति देता है, उनको भी प्रेम दिलाता है। ऐसा ही वृंदावन धाम है। तो आपको क्यों नहीं देगा? आपको भी देगा, अगर आप चाहेंगे, संकल्प करेंगे और वैसे अनुकूल भाव में रहेंगे, तो आपको यहाँ पर
भी उत्तमा प्रीति की प्राप्ति होगी। उत्तमा प्रीति का और एक अर्थ है, उत्तमा एक राधा रानी का नाम भी है। तो उत्तमा प्रीति का और एक अर्थ है, एक तो श्रेष्ठ प्रीति, और दूसरा अर्थ है जो राधा रानी के हृदय में है कृष्ण के प्रति, वो भी उत्तमा प्रीति है, वो भी आपको प्राप्त हो सकती है। यहां पर श्री कृष्ण, राधा रानी और बलराम जी देने के लिए बहुत उत्सुक है। आपने पात्र कितना बड़ा लाया है, 50 ml का लाया है कि 5 लीटर का लाया है कि 5000 लीटर का लाया है, उतना भर सकते हैं। आपको जमुना जी का पानी लेना है, जमुना जी में कितना पानी है, लेकिन आपके बोतल में उतना ही आएगा जितनी आपकी बोतल की क्षमता है। 1 लीटर की बोतल क्षमता है तो 1 लीटर ही जमुना जी का जल आपके साथ में आएगा, 10 लीटर नहीं आएगा। देने वाले व्यक्ति अनंत मात्रा में देने के लिए बैठी हुई है, लेने वाला व्यक्ति हम जैसे लिमिटेड मात्रा में ले जा सकते हैं, लेकिन जितनी कैपेसिटी है उतना तो फुल आपको लेके जाना चाहिए। आपके पास 1 लीटर की बोतल है तो आपको आधी बोतल नहीं भरनी चाहिए, पूरी बोतल भरनी चाहिए। तो चेतना में कितनी शक्ति है, वो मल्टीप्लाई करने की जगह है ये। थोड़े समय में देखो आपको क्या क्या लाभ है। आप वृंदावन धाम में हो तो यहां पर वैसे भी किसी भी समय पर 1 लाख गुना मल्टीप्लिकेशन तो ऑलरेडी उपलब्ध है। हाँ, 1,100,000 मल्टीप्लिकेशन आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके ऊपर आप कार्तिक मास में आए हो, उसको भी हजारों गुणित लाभ है उसके, और बीच में उत्सव भी आ रहे हैं। गोवर्धन पूजा आ गई, आज भैया दूज है, कल बड़ी प्रतिपदा थी, भगवान को बांधा था वो दिन था दीपावली का, प्रभु रामचंद्र आए थे अयोध्या में लौटकर, वो दिन था। उन दिनों में वैसे भी बंबई में रहकर भी आपको अधिक लाभ मिलता है उत्सव के समय, वो भी उत्सव आपको यहाँ मिलेंगे। तो क्या है ना, वो ग्रेट ग्रैंड सेल है भगवान का यहाँ पर अभी जिस समय आप आए हो। इसलिए असुविधा होगी दुर्लक्ष्य करना, भीड़ होगी, धूप लगेगी, कभी टाइम पे भोजन नहीं मिलेगा, देर हो जाएगी, ट्रैफिक जैम होगा, कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है यहाँ पर। वो हुए बिना आपको कृपा नहीं प्राप्त होती है ना। तो इस प्रकार से वृंदावन के धाम के बारे में जितना कहे उतना कम है, क्योंकि वृंदावन धाम स्वयं श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण जितने दयालु नहीं है उससे ज्यादा दयालु वृंदावन धाम है। जिनको ब्रह्मा जी को कृष्ण के पास शरण लेने पर भी माफी नहीं मिली, उसको वृंदावन धाम ने माफी दिलाई रज के रूप में। इस वृंदावन धाम के चिंतामणि रज ने ब्रह्मा जी को भी क्षमा दिलाई, तो ब्रह्मा जी भी भगवान की कृपा से संतुष्ट हो गए, कृपा प्राप्त की भगवान ने यहाँ पर, ब्रह्मा जी ने। वो भूमि में हम लोग सब लोग आए हैं। नाम भगवान का, रूप भगवान का, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों चीजें भगवान से ज्यादा कृपालु हैं। करुणा का जो अंश है वो इन 4 चीजों में भगवान से ज्यादा है, इसलिए भगवान की लीला हमको ज्यादा कृपा करती है। भगवान का नाम भगवान से भी अधिक कृपा करता है। जो भगवान नहीं बचा सकते उनको भगवान का नाम बचाता है। हनुमान जी ने कितनी बार इसको प्रूव किया है। तो कुछ आपको मैं टिप्स देना चाहता हूं। वृंदावन धाम में चलते समय बिना असुविधा के धाम यात्रा नहीं होती है। तब किसको कहते हैं? तब उसको कहते हैं जो हम स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से कुछ असुविधाएं स्वीकार करते हैं भगवान के संतुष्टि के लिए। तब के 3 अंग होते हैं, एक असुविधा, एक स्वेच्छा और एक भगवान की संतुष्टि। ये तीनों जब होता है तो ही तप होता है वो, और तीनों जब होता है तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अगर भगवान के लिए हम नहीं असुविधा स्वीकार करेंगे तो और कुछ प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, अच्छे कर्मों के फल प्राप्त होंगे। हाँ, हम यहाँ पर केवल शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए आए हैं। यहाँ पर हम किसी प्रकार से कर्मकांडी या फल प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। किसी के मन में होगा कि मैं वृंदावन में जाकर राधा रानी से पुत्र प्राप्ति की कामना करूंगा या करूंगी, या मैं मेरी विद्या के लिए फॉरेन को एडमिशन मिलना चाहिए वहां के लिए प्रार्थना करूंगी या करूंगा। ऐसे कुछ लोगों के मन में बहुत प्रश्न विकल्प होंगे, लेकिन सब आपको यहाँ पर त्याग करना है, क्योंकि वो मांगने की ये जगह है ही नहीं। यहाँ की भूमि कृष्ण प्रेम, भक्ति और सेवा भाव को देने वाली है।
गलत जगह पर गलत चीज मांगनी नहीं चाहिए, वो नहीं प्राप्त होती वहां पर। और अगर भगवान देना भी चाहते हैं तो हमारा नंबर तो गलत हो गया, क्योंकि हम लोग ने गलत जगह पर भगवान से कुछ कुछ मांगा जो यहाँ पर नहीं मांगना चाहिए था। जीवन में अच्छे बुरी चीजें होती है अपने कर्म के अनुसार होती है, उसके लिए अलग मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर लिखा है वो सुख मिलेगा, उसको आप टाल नहीं सकते हैं। जो यहाँ पर लिखा है वो दुख मिलेगा, उसको भी आप टाल नहीं सकते। लेकिन भगवान की भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं इन सारी अवस्था में। तो कुछ नियम ऐसे हैं कि मैंने असुविधाओं की बात शुरू की थी। हाँ, असुविधा निश्चित रूप से होगी। किसी को बुखार आएगा, किसी कोई गिर जाएगा, कोई को जख्म हो जाएगी, किसी को भोजन नहीं मिलेगा, किसी को देर हो जाएगी, कोई और फंस जाएगा। कोई राधा कुंड में एक बार यात्रा में एक बालक गुम हो गया था। महाराज जी खुद ढूंढ रहे थे उसको। रात को 8 बजे एक जगह सोया हुआ मिला और माता पिता भी भाव में एकदम स्नान करते चले गए, बालक को ही भूल गए उधर। बहुत बड़ा कमोशन था, उस यात्रा का ऑर्गेनाइजर मैं था। मुझे याद है। एकदम बस में बैठने के बाद माता को याद आया, अरे बच्चा किधर है। तो बाद में महाराज खुद गए और राधा कुंड के कोने में सोया हुआ था, थक गया था बेचारा। ऐसा सब कुछ होता है। ऐसा नहीं कि माता ऐसी क्या कहते हैं उसको, केयरलेस है, बच्चे पर प्रेम नहीं करती है, बच्चे को छोड़ना ही चाहती थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऐसी घटनाएं होती है। एक बार हम लोग यात्रा कर रहे थे तो इतनी ट्रैफिक जाम थी, इतना सारा प्रॉब्लम था कि हम रात भर ट्रैवलिंग करते रहे 2 घंटे की जर्नी के लिए। वो रास्ता पकड़ के, वो रास्ता पकड़ के, ऐसे घूमते 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 मिडल ऑफ द नाइट भी हम लोग रास्ते पे खड़े होकर चर्चा कर रहे, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी यात्रा में ऐसा होने वाला है, लेकिन धाम में जो भी कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है। और धाम में जो भी कुछ होता है वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और आत्मशुद्धि के लिए होता है। यहां पर जो भी देखने को मिलता है, ये बात कहकर मैं आज की कथा को विराम दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब 1994 में मैंने वो 425 लोगों की यात्रा ऑर्गेनाइज की थी, उस समय 425 से बहुत बड़ा नंबर था। 8 बसें, ये भी बहुत बड़ा नंबर था। 8 बसेस, 425 डिवोटीज, ऐसे लोग कहते थे उसको। तो उस यात्रा में लास्ट डे में, लास्ट दिन का दर्शन करके हम लोग लौट के आ रहे थे, तो महाराज ने अपनी गाड़ी छोड़कर मेरे बस में आए, जहां पर मैं बैठा था। तो मेरे बाजू में आके बैठ गए। मुझे उन्हें प्रश्न किया, तो विश्वरूप आपको यात्रा का हाईलाइट क्या लगा? हाईलाइट सबसे अधिक दिल को क्या छुआ? तो भी मैं ऑर्गेनाइजर मैनेजमेंट के मोड में था। तो मैंने कहा, महाराज हमने दिन में, हर दिन में इतने सारे जगहों का प्लान करके रखा था। हर दिन में कुछ 8-10 जगह का प्लान करके रखा था, लेकिन लोग हिलते नहीं है, चलते नहीं है, धीरे 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 चलते हैं। हाँ, वो कृष्ण है ना, वो गाय हल्या हल्या थिर थिर, हाँ, वो गाय बैल जो है ना, वो आगे जाते ही नहीं, उनको धक्का मारना पड़ता है पीछे से, आगे से। अगर लोग अच्छी तरह तेज चलते, समय पर आते और जैसा कहा उतना तेज चलते, तो हम सब कुछ दर्शन कर सकते थे। हर दिन हमारे 3-3 जगह छूट गई है। तो मुझे लगा कि मैं कितना करुणावान ऑर्गेनाइजर हूं कि लोगों को दर्शन मिलना चाहिए, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं कि उनको नहीं मिला दर्शन। तो महाराज खुश होंगे और मेरे इस भाव को धन्यवाद देंगे। उससे उल्टा महाराज गंभीर हो गए बहुत। मुझे समझ में आया कि मैं जो भी कुछ कह रहा हूं वो अच्छा नहीं कर रहा हूं। समझ में आया उनको चेहरों को देखकर। मेरा भाव ये था कि अगर लोग समय पर चलते तो जितना प्लान किया था सब जगह देखते। तो महाराज ने कहा, दिस इज रॉन्ग, ये सोचना गलत है, क्योंकि वृंदावन धाम भगवान का घर है। अभी मैं पूना में आता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे ये रूम के अंदर ये नंबर 1 रूम देना। जो रूम देते हैं उस पर रहता हूं, क्योंकि वृंदावन चंद्र का घर है। वो तय करते हैं मुझे कहाँ रखना है और कहाँ खिलाना है और क्या खिलाना है। मैं इनको फोन करके बोलता नहीं हूं कि मुझे वो साउथ इंडियन केले की सब्जी अच्छी लगती है, वो मुझे खिलाओ, ऐसा नहीं कहता हूं। वो लोग तय करते हैं क्या देना है, कौन सा महाप्रसाद खिलाना है, लंच में डिनर में क्या करना है, वो सब तय करते हैं। ये चेतना लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वृंदावन धाम कृष्ण का घर है और हम कृष्ण के घर में आए हैं
और कृष्ण के घर में आने के बाद उनके घर का कौन सा हिस्सा आपको दिखाना है, ये कृष्ण तय करेंगे। आपके घर में अगर आता हूं मैं, 5 कमरे का घर है, तो कौन से कमरे में रखना है वो आप तय करेंगे, और कौन सा कमरा आपको ले जाना है वो भी आप तय करेंगे। आई कैन नॉट से कि आपका बेडरूम खाली करके मुझे वहां रहने दो, आप बाहर सो जाओ। आई कैन नॉट से दैट। या तो मुझे देखने दो आपके बेडरूम में क्या क्या है, कबर्ड में क्या क्या रखा है। आई डोंट हैव राइट टू गो इनसाइड, क्योंकि वो आपका घर है, आप उसके स्वामी हैं, आपका अंतःपुर आपके स्वामित्व में है, इट्स नॉट अंडर माय कंट्रोल। तो वही भाव आपको यहां पर होना चाहिए कि आप कृष्ण के घर में आए हो, और कृष्ण के घर में रूप गोस्वामी कहते हैं 66 अब्ज 66 बिलियन प्लेसेस आर देयर ऑफ पास्ट टाइम्स एज पर रूप गोस्वामी इन मथुरा महात्म्य। उनमें से कितने आपको दिखाना है वो कृष्ण तय करेंगे। हम लोग प्लान करेंगे, लेकिन एक्चुअली आपको देखने को कितना मिलेगा वो कृष्ण तय करेंगे। इसलिए क्या देखने को मिला, किस चीज का दर्शन हुआ, क्या सुनने को मिला, ये सब कृष्ण तय करते हैं। और हमको उसी के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आपने इतना दिखाया, इतना सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। भगवान आपने ये नहीं दिखाया, ये नहीं सुनाया, ये कथा तो सुनी नहीं, ये जगह तो देखी नहीं, प्रभु जी ने कथा में बताया था लेकिन आपने लेके नहीं गया, ये सब सोचना ही नहीं चाहिए आपको। आपको अभी जिंदगी बहुत बाकी है और आपको अनेक बार वृंदावन में आना है। आज भी मैं 40 साल से आ रहा हूं, हर समय जब मैं आता हूं तो एक नई जगह का दर्शन होता है। तो पिछली बार मैं अगर कहता अरे मैं इतनी बार आया लेकिन ये जगह भगवान ने दिखाई नहीं मुझे, अभी भी भगवान दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान का धाम अनंत है। जैसे भगवान अनंत है, लीला अनंत है, उनकी लीला स्थली भी अनंत है। और जब जब भगवान को लगेगा हम योग्य हैं, तब तब भगवान एक एक स्थान हमको दिखाते जाएंगे। तो ये भाव से यहां पर आएंगे ना, तो आपको अगली बार भगवान जरूर ज्यादा स्थान दिखाएंगे। क्योंकि यहां पर हम लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम याचना कर रहे हैं, कृपा की याचना कर रहे हैं। वी आर बेगिंग, वी आर सपोज्ड टू बी कॉन्स्टेंटली बेगिंग फॉर मर्सी हियर। देयर इज नो राइटफुल ओनरशिप हियर। कोई यहां पर अधिकार नहीं हमारा, किस चीज का भी अधिकार नहीं। हम सब लोग सेवक हैं, सब लोग नियंत्रित हैं, और सब लोग उनकी इच्छा के अंडर हम काम कर रहे हैं। यही भाव होना चाहिए। इस भाव से आएंगे और ऋणी और कृतज्ञता का भाव लेकर लौटेंगे, तो आपका कृतज्ञता का भाव लेकर अगली बार और वर्षाव करेंगे भगवान कृपा आपके ऊपर। ये इसका राज है। तो डिमांड करेंगे कृपा का, तो डिमांड से कृपा नहीं मिलती है, याचना से मिलती है, गिड़गिड़ा से मिलती है, रोने से मिलती है। और हमको वो कृपा चाहिए, हमको अधिकार पूर्वक कार्य नहीं चाहिए। तो दोबारा एक बार कह रहा हूं, असुविधा यहां पर होगी, फिर भी आपको चलते रहना है। कोई कष्ट हुआ, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रॉब्लम हुआ, थैंक यू वेरी मच। जो मिला, पेट भरा, थैंक यू वेरी मच। वो कल के आइटम में ये था, मुझे नहीं मिला, थैंक यू वेरी मच। हर चीज को धन्यवाद करो आप, फिर भगवान अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको देंगे, आपको मालामाल कर देंगे। स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक उन्नति में मालामाल कर देंगे आपको। तो उस चेतना को विकसित करने के लिए, विस्तारित करने के लिए आपकी यात्रा है। और आपकी यात्रा का जो मूड है, वो एक चीज से पूर्णता स्पॉइल हो सकती है, वो है बंदरों का आपका मिलन। इसलिए सबसे पहले चश्मा उतार के कम से कम यहां पर घूमना है आपको। गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना यहां पर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वृंदावन में चश्मा पहन के मत घूमना। इतना ही नहीं, आपके पास कोई बैग होगी तो उनको लगता है कि आपके पास भोजन है, तो आप पर हमला कर सकते हैं। आपका मोबाइल भी छीन सकते हैं, क्योंकि उनको पता है आपको किस चीज पर प्रेम है। एक उनको भोजन पर खुद को प्रेम है, और एक आपको जो चीज है प्रेम है, वो भी पता है उनको। क्योंकि उनको अगर भोजन चाहिए तो आपकी प्रिय वस्तु छीन लेंगे, तो आप उनको भोजन देंगे। ये उनका साइकोलॉजी है। और कुछ लोगों ने उनको ट्रेन करके रखा है। कुछ जगह फ्रूटी पीते हैं, कुछ जगह केला खाते हैं, कुछ जगह और कुछ खाते हैं। उनका स्पेसिफिक एरिया वाइज डाइट है। कहने का तात्पर्य है, बंदरों की आंखों में मत देखना। जहां पर भी जाओगे, हो सके मुमकिन है तो एक डंडी हाथ में लेके चलना, क्योंकि डंडी से वो डरते हैं। लेकिन रास्ते में अकेले मत घूमना, क्योंकि जहां पर यात्रा होती है वहां चोर भी आते हैं।
और बंदर भी आते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं, वो आपकी चीजें छीन लेते हैं, और जैसे आपकी चीज कोई छीन जाती है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। अभी मेरी कथा सुन रहे हो, अचानक कथा सुनते थे पता चला आपको क्या को मोबाइल गायब है, तो सारी कथा भूल जाएंगे आप, बस सारी चेतना मोबाइल व्याप्त कर लेगा, मोबाइल चेतना विल कवर यू कंप्लीटली। इसलिए वो सब रिस्क यहां पर मत लेना, भक्तों के साथ रहना, अकेले यहाँ वहां घूमना नहीं कि मुझे वहां जाना है, प्रभु जी ने कथा बताया तो मैं अकेले आके घूम के आऊंगा। भक्तों के साथ रहना, जो लीडरशिप ने बताया है वही फॉलो करना, अपने मन से कुछ बातें मत करना। भले ये वृंदावन धाम है लेकिन ये आपके लिए पराया जगह है, आपका घर की जगह नहीं है, अननोन प्लेस है आपके लिए। और अननोन प्लेस में अगर बुरा अनुभव होता है ना तो आप बोलेंगे दोबारा मैं कभी वृंदावन नहीं जाऊंगा। इसलिए वृंदावन में भक्तों के साथ जाना चाहिए। मेरे बड़े भाई भी यहाँ पर एक बार, कितनी बार कहा था मेरे साथ में आओ, फिर भी अकेले आए, और अकेले आते ही उनको एक वृंदावन में एक मंदिर में ऐसा लूट लिया, उन तभी निश्चय कर लिया दोबारा कभी नहीं आऊंगा। आज तक लौट के नहीं आए, 20 साल हो गए। क्यों? नियम का पालन नहीं किया ना। भक्तों के संग में आना चाहिए, अकेले जाना नहीं चाहिए। तो जितना वृंदावन आपको दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति दे सकता है, उतना ही वृंदावन आपको बुरे से बुरा अनुभव भी दे सकता है। अगर वृंदावन को आपको यहां से भगा देना है तो बुरे से बुरा अनुभव यहां पे हो सकता है, और वृंदावन को आपको यहां रखना है तो अच्छे से अच्छा अनुभव, अट्रैक्शन आपको वृंदावन दे सकता है कि आप बार बार लगातार हजारों बार यहां पर लौट के आए यहां का लाभ लेने के लिए। हरे कृष्णा। अभी मैं प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा आपको। केवल यहां पर जो बैठे हम लोग ना, यहां पर वृंदावन में अगर सब स्थान देखना है तो आपको 7 दिन लगेंगे। ओनली वृंदावन, नंदगांव बरसाना भूल जाओ, अगर पूरा वृंदावन देखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक दिन में आप पूरा वृंदावन नहीं देख सकते। फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट। तो मैंने आपके लोगों को मैंने कुछ ग्रुप बना के दिए हैं, जगह के ग्रुप्स जो एक दूसरे के पास में हैं। एक जगह जाएंगे तो 5 स्थान आप कर सकते हैं, फिर दूसरा ग्रुप, फिर ऐसे में 5-6 ग्रुप बना कर दिए। इसको दिए, आपके पास है ना वो ग्रुप, तो वो कैसे भी आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे। आप उनमें से एक ही ग्रुप चुनना और केवल उसी जगह जाना। ये मत सोचना करे वो तो गोपीवट बंसीवट भी गए, हम लोग तो इधर ही गए, अरे आपका गोपी बंसीवट हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा सोचना मत, क्योंकि आपको मुमकिन नहीं एक दिन में। जैसे मैंने कहा, जो भी मिलता है, जो भी जाते हैं दर्शन करने के लिए, मत्था टेक यात्रा मत करना। मत्था टेक यात्रा क्या होती है? 50 जगह मत्था टेका, एक जगह के बारे में याद नहीं आएगी आपको। क्या जगह में मत्था टेका, उधर क्या लीला हुई, उधर क्या उपदेश है मेरे लिए, उस कुछ भी मालूम नहीं। आप कितनी जगह गए? 15 जगह गए। आप कितनी जगह गए? 12 जगह गए। कुछ जगह गए याद नहीं। व्हाट इज द यूज? आप एक जगह जाओ, ऐसे जाओ कि वो जगह आपके साथ, हृदय में आपके साथ आएगी। ऐसे उसको एब्सॉर्ब करो, हाँ, आंखों से, कान से, नाक से, त्वचा से, विचार से, ऐसे ग्रहण करो उस जगह को कि वो आपके हृदय में प्रवेश करके आपके साथ में आ जाए। उसके बाद में चर्चा करना, उसके बारे में डिस्कस करना, टू रिवाइज। तो यहां से शुरू होता है कालिया घाट, मदन मोहन, अद्वैत वट। कालिया घाट में भगवान ने कालिया को मदवर्धन किया था, नृत्य किया था। अद्वैत वट में मदन मोहन जी प्रकट हुए थे अद्वैत आचार्य के लिए। मदन मोहन जी का मंदिर टील पर है, जहां पर भगवान को 12 सूर्यों ने अभिषेक गर्मी दी थी, आदित्य टील। उसके बाद बांके बिहारी का मंदिर, उसका राधा वल्लभ जी का मंदिर। बांके बिहारी जी का मंदिर स्वामी हरिदास ललिता के अवतार थे, उनका मंदिर है वो। बंसी के अवतार हित हरिवंश गोस्वामी, उनका मंदिर राधा वल्लभ जी का मंदिर है। ये एक हो गया। इमली तला में राधा रानी का अभिषेक हुआ था। इमली तला में चैतन्य महाप्रभु ने ध्यान करके गोरे महाप्रभु काले रंग के हो गए थे। कृष्ण ने वहां ध्यान किया था, सांवले रंग के कृष्ण गोरे हो गए थे। कई लीलाएं एक जगह पर है, इमली तला। उसके बाद श्रृंगार वट है, जहां पर राधा रानी का श्रृंगार कृष्ण भगवान ने किया था। उसके आगे जाएंगे दामोदर का मंदिर है, जहां पर प्रभुपाद ने निवास किया था। जीव गोस्वामी का मंदिर, रूप गोस्वामी की समाधि, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की पुष्प समाधि, जीव गोस्वामी की समाधि, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की पुष्प समाधि, राधा वृंदावन चंद्र, राधा दामोदर, राधा छैल चिकन, राधा माधव,
ऐसे सभी बहुत महत्वपूर्ण मूर्तियों का एक भंडार है वो। उसके आगे नुपुर प्राप्ति स्थली, श्यामानंद प्रभु को वहां पर राधा रानी के चरणों की प्राप्ति हुई थी, नुपुर की प्राप्ति हुई थी। उसके आगे श्याम सुंदर का मंदिर है, यहाँ पर राधा रानी ने श्यामानंद गोस्वामी को हृदय से श्याम सुंदर की मूर्ति प्रकट करके दी थी, वो उस मंदिर में है। ये एक दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरा ग्रुप है किशी घाट, यहाँ पर किशी को भगवान ने मारा था जमुना किनारे। उसके आगे गोकुलानंद का मंदिर, यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की मूर्तियां हैं, चैतन्य महाप्रभु है, नरोत्तम दास ठाकुर के, विजय गोविंद है, बलदेव विद्याभूषण के, लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद है, लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, नरोत्तम दास की पुष्प समाधि है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की समाधि है, गंगानारायण चक्रवर्ती की समाधि है। ऐसे बहुत ही सुंदर स्थान है वो। उसके आगे राधा रमण मंदिर है, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रकट की हुई शालिग्राम शिला से राधा रमण जी की मूर्ति है, वो प्राकट्य स्थली भी है, गोपाल भट्ट की समाधि भी है। उसके आगे जाएंगे तो गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर मधु पंडित ने गोपीनाथ जी को प्रकट किया था। उसके अंदर गोपीनाथ मंदिर के अंदर मधु पंडित की समाधि भी है। फिर उसके आगे सेट जाएंगे तो गोविंद जी का मंदिर है, 7 मंजिल का, जो औरंगजेब ने तोड़ दिया था, 2 मंजिल बाकी है। राधा गोविंद जी का मंदिर है। उसके पीछे एक नया राधा गोविंद का मंदिर भी है। उसके आगे रंगनाथ जी का मंदिर है, पूरे एक सिटी है वो, श्री रंगम। अंदर जाएंगे तो आप भूल जाएंगे कि वृंदावन यूपी में है, कंप्लीट साउथ इंडिया में। उसके आगे जाएंगे तो ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड में ब्रह्मा जी रोए थे, 4 मुख 8 आंखें, पश्चाताप का अश्रु रोए थे, पूरा हौद बना था अश्रु से। वहीं पर वृंदा देवी की मूर्ति रूप गोस्वामी को प्राप्त हुई थी, वो ब्रह्म कुंड है। उसके आगे जाएंगे तो गोपेश्वर महादेव, यहाँ पर शंकर जी महाराज गोपी बनकर रास का दर्शन कर रहे हैं, रास का रक्षण भी कर रहे हैं। और उसके आगे बंसीवट, जहाँ पर रास मंडल पे भगवान नित्य रास करते हैं। और इस तरफ आएंगे तो इस तरफ दावानल कुंड, जहाँ पर भगवान ने अग्नि प्राशन किया था। उसके आगे जाएंगे अक्रूर घाट, जहाँ पर अक्रूर जी ने भगवान का विष्णु रूप में दर्शन किया था जमुना जी के अंदर। वहां पर जानवा देवी, 6 गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सबकी कई मीटिंगें हुआ करती थी, जहां पर चैतन्य महाप्रभु भोजन किया करते थे, अक्रूरे मध्यान्ह भोजन। ऐसे सुंदर स्थली है, एकांत स्थली है। और उसके आगे है भात्रोल बिहारी यज्ञ स्थली, जहां पर यज्ञ में ब्राह्मणों से भगवान ने यज्ञ पत्तियों से भिक्षा मांगी थी, मतलब ग्वाल वालों ने। ये ग्रॉस ग्रुप में है। इसके अंदर बहुत सारे अनंत स्थान है, निधि वन है, सेवा कुंज है। एक ठाकुर जी ऐसे हैं जो बनखंडी महादेव के पास है, उसको कहते हैं पिशीमा के गौर निताई। वो छोटे साइज के थे और पिशीमा नाम की शुद्ध भक्त थी। पिशीमा यानी आंटी इन बंगाली, तो वो मंदिर का नाम ही पिशीमा के गौर निताई है। वो पिशीमा के कहने के अनुसार छोटी मूर्तियां बड़ी हो गई थी, बड़े साइज की हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था अरे कितने दिन बच्चे बन के रहोगे, अभी बड़े तो हो जाओ। तो गौर निताई बड़े हो गए थे तुरंत। तो ये भी विराजमान, ऐसे अद्भुत स्थान है यहाँ पर। बनखंडी महादेव है। सनातन गोस्वामी को गोपेश्वर महादेव का रोज जाने का नियम था जब भी वृंदावन में थे। तो बहुत बुजुर्ग हो गए, तो एक बार गोपेश्वर स्वप्न में आए और उन्होंने बताया अभी इतना दूर मत चलना, क्योंकि आज भी जहां पर द्वादश आदित्य मदन मोहन जी का मंदिर है ना, वहां से भी वो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर है गोपेश्वर महादेव। इतना दूर मत चलना, बोरे थोड़े ही पास में बनखंडी महादेव के रूप में मैं प्रकट हो गया हूँ, वहीं पर जाके दर्शन करना। तो सनातन गोस्वामी ने वहां पर दर्शन करना आरंभ किया। वो बनखंडी महादेव भी बीच में है, लोई बाजार के पहले। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्थान हैं। गोपाल गुरु का मंदिर है, धीर समीर है, 3 समाधि है, हेमलता ठाकुरानी, श्रीवास पंडित, क्या कहा कहे आपको। लेकिन उसके लिए आपको बार बार अनंत बार आना पड़ेगा। और इसमें से एक ग्रुप आपको चुनना है और रिक्शा करके जाना है। शायद भीड़ होगी, दर्शन होगा। दर्शन करते आपको 3 चीज करना है। एक, प्रणाम करना है, हो सके आपके पास दीपक है तुरंत जला के उसको दीपदान करना है, और केवल प्रेमा भक्ति की याचना करनी है, बस, दैट्स ऑल। बाकी कुछ समय बहुत कम है ना आपके पास, तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही चीज करना है। दंडवत प्रणाम करना है, भक्तों को कष्ट देना नहीं है, भगवान का बहुत प्रेम से निहारना है, चरणों से लेकर ऊपर तक निहारना है भगवान को, और प्रार्थना में बताना है प्रेमा भक्ति दे दो इस जन्म के बीच में बस, और अगले मंदिर जाना है। और आंखों को कानों को खुला रखना है, सब देखना है बराबर से, ताकि हृदय में वीडियो टेपिंग उसका हो जाए। जहां फोटो अलाउड नहीं है वहां फोटो नहीं लेना है।
गोस्वामी जी आपको गाली देंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे, वो नहीं करना है। जहां लिखा है नो फोटोज, डोंट टेक एनी फोटोज, हृदय में फोटो उतार लेना, उसके लिए मनाही नहीं होती है। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को? ऑर्गेनाइजर्स, एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। इज ऑल राइट? थैंक यू सो मच। हरि बोल।